دوستو اسرائیل اور فلسطین کے میٹر کو لے کر بالکل عام لوگوں کی طرح ہی ہمارے دنیا کے جو مشہور لوگ ہیں، جو سیلیبریٹیز ہیں، وہ بھی دو گروپ میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ جہاں ایک طرف اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہیں دوسری طرف ایک بڑا گروپ ایسا بھی ہے کہ جو کھل کر پوری طرح سے فلسطین کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ لوگوں کو ہماری دنیا کے کچھ ایسے سیلیبریٹیز، ہماری دنیا کے کچھ ایسے مشہور چہروں سے ملوائیں گے کہ جنہوں نے اپنے کریئر، اپنے فیوچر اور اپنے فین بیس کی پرواہ کیے بغیر فلسطین کو کھل کر سپورٹ کیا۔ اس لسٹ میں پہلے نمبر پر نام آتا ہے حدید سسٹرز کا، مطلب کہ بیلا حدید اور گیگی حدید۔ ظاہر ہے یہ دونوں ہی آج کے دور میں کسی انٹروڈکشن کی محتاج نہیں ہیں۔ ہالی ووڈ انڈسٹری سے جب بھی فلسطینیوں کی سپورٹ کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلا نام انہی دونوں بہنوں کا ہی لیا جاتا ہے۔ ویسے تو دوستو دنیا میں کہیں پر چاہے وار ہو یا کسی پر ظلم ہو رہا ہو یا پھر کوئی آپدہ آ گئی ہو، ہر معاملے میں ہی یہ دونوں بہنیں کافی ایکٹیو نظر آتی ہیں۔ مگر ہاں، جب معاملہ فلسطین کا آ جاتا ہے تو ان دونوں کا ایکٹیویزم دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ان دونوں بہنوں کا فلسطین کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہے۔ یہ آج کے دور میں بھلے ہی امریکہ میں ہوں، مگر ان کے جو باپ دادا تھے، ایون ان کے جو فادر تھے، ان کی پیدائش بھی سن 1948 میں فلسطین میں ہی ہوئی تھی۔ مطلب ہالی ووڈ کی یہ دونوں سیلیبریٹیز نسلی طور پر ایک فلسطینی ہی ہیں۔ فلسطین میں جب بھی کچھ ہوتا ہے تو یہ دونوں بہنیں سوشل میڈیا پر تو ایکٹیو نظر آتی ہی ہیں اور فلسطین کے ساتھ کھڑی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مگر دوسرے سیلیبریٹیز سے الگ ہٹ کر یہ دونوں بہنیں کبھی کبھی ان پروٹیسٹ میں بھی شامل ہوتی نظر آتی ہیں کہ جو سڑکوں پر ہو رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پروٹیسٹ اب نہ صرف اور زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے پہنچنے سے ان پروٹیسٹ کو نیوز وغیرہ میں کورنگ بھی زیادہ ملنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں بہنیں ہمیشہ سے ہی ہالی ووڈ انڈسٹری میں ایک بڑے گروپ کے نشانے پر رہتی ہیں۔ اب اس لسٹ میں اگلا نام ہے اینجلینا جولی کا۔ اینجلینا جولی ہالی ووڈ انڈسٹری کا کتنا بڑا اور کتنا زیادہ مشہور نام ہے، اس چیز کا اندازہ آپ لوگ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان ہالی ووڈ انڈسٹری میں انٹرسٹ نہ رکھتا ہو اور اس نے ہالی ووڈ کی فلمیں نہ بھی دیکھی ہوں، جب بھی اس کو پتہ ہی ہوگا کہ آخر اینجلینا جولی کون ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاقے میں اگر کوئی انسان بالی ووڈ میں انٹرسٹ نہ رکھتا ہو اور بالی ووڈ فلمز نہ دیکھتا ہو، پھر بھی اس کو پتہ ہے کہ سلمان خان، شاہ رخ خان کون لوگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اینجلینا جولی کی طرف سے فلسطین کو سپورٹ کیا گیا تو امریکہ اور پورے یورپ کے سوشل میڈیا پر ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ ابھی کچھ وقت پہلے ہی سوشل میڈیا کے ذریعے سے اینجلینا جولی نے اسرائیل کی جو کارروائی ہو رہی ہے غزہ کے اندر، اس کو نہ صرف غلط بتایا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ کھانے پینے کی چیزوں پر جو اسرائیل کی طرف سے روک لگائی گئی تھی اس کے لیے بھی آواز اٹھائی تھی۔ اینجلینا جولی نے اپنی پوسٹ میں فلسطینیوں کے ادھیکاروں کے بارے میں بھی بات کی تھی۔ ویسے تو اس پوسٹ سے ہی کافی ہنگامہ مچ چکا تھا اور اینجلینا جولی کے خلاف نہ جانے کس کس طرح کی باتیں کی جانے لگی تھیں، مگر اینجلینا جولی یہیں پر نہیں رکی۔ انہوں نے بعد میں سوشل میڈیا پر ایک اور فوٹو پوسٹ کیا کہ جس کے اندر اسرائیل کو غزہ کے علاقے میں ایئر اسٹرائک کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ غزہ کے اس علاقے کو پچھلے 20 سال سے لگاتار ایک کھلی جیل بنا کر رکھا گیا ہے۔ دوستو اب اس لسٹ میں اگلا نام ہے عرفان پٹھان کا۔ انڈین کرکٹ ٹیم کے اتہاس کے ایک مشہور اور بڑے ہی زبردست آل راؤنڈر کہ جنہوں نے آلریڈی اپنے نام ایسے ریکارڈ کر رکھے ہیں کہ جن کو توڑنے میں اگلے کئی سالوں کا وقت لگے گا۔ ویسے تو عرفان پٹھان سوشل میڈیا پر باقی سارے مدعوں کو لے کر اور اسپیشلی کرکٹ کو لے کر ہمیشہ ایکٹیو ہی نظر آتے ہیں، مگر جب انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی مطلب نومبر کی شروعات میں غزہ کی سپورٹ میں ایک ٹویٹ کیا تو ان کو وہ سب کچھ جھیلنا پڑا اور وہ ساری چیزیں فیس کرنا پڑی کہ جس کی امید شاید انہوں نے بھی کبھی نہیں کی تھی۔ دراصل انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جس میں فلسطین کو سپورٹ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا تھا کہ ہر دن 1 سے 10 سال کی عمر کے بے گناہ بچے بڑی تعداد میں جان گنوا رہے ہیں، پھر بھی پوری دنیا خاموش بیٹھی ہے اور میں ایک اسپورٹس مین کی حیثیت سے، مطلب کہ ایک کھلاڑی کی حیثیت سے صرف اور صرف آواز ہی اٹھا سکتا ہوں۔ یہ ہائی ٹائم ہے کہ جب دنیا کے سارے لیڈرز کو اکٹھا ہونا چاہیے اور یہ جو قتل عام ہو رہا ہے اس کو روکنا چاہیے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شاید عرفان پٹھان کو پہلے سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس پوسٹ کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا، اسی لیے انہوں نے اس پوسٹ کا جو کامنٹس باکس تھا اس کو بند کر دیا تھا، مگر پھر بھی وہ اس چیز سے بچ نہ سکے کہ جس سے وہ بچنا چاہتے تھے۔ خود انڈیا کے ہی لوگوں نے اور اسپیشلی ایسے لوگوں نے کہ جو ان کے فینس ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے، ان کی پوسٹ کے اسکرین شاٹ کو لے کر یا پھر کسی دوسری طرح سے ان کو مینشن کر کے بری طرح سے ٹرول کیا۔
किसी ने उनको कश्मीरी हिंदुओं की याद दिलाई तो किसी ने कहा कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर होने वाले जुल्म सितम पर चुप क्यों रहते हो, तो किसी ने उनसे ये भी कहा कि जब हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था तब कहाँ थे। बात करें अब अगर अगले नाम की तो वो नाम है ज़ैन मलिक। ये एक ब्रिटिश सिंगर हैं और वैसे तो ये इतने ज़्यादा मशहूर हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप में से ऑलरेडी 80 से 90% लोग इनको जानते ही होंगे। जो ज़ैन मलिक को उसके नाम या फिर उसके काम से नहीं भी जानते होंगे तब भी उन्होंने ज़ैन मलिक के फेस को कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। वो इसलिए क्योंकि ज़ैन मलिक का ये जो फेस है ये पूरी दुनिया में हमेशा से ही एक मॉडल के तौर पर काफ़ी मशहूर रहा है। ज़ैन मलिक ने भी चाहे सन 2014 का इजराइल और फ़िलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर सन 2021 में दोनों ही बार फ़िलिस्तीनियों के लिए खुलकर आवाज़ उठाई थी। ज़ैन मलिक ने अपने सोशल मीडिया के पोस्ट में लिखा था कि मैं फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ खुलकर खड़ा हूँ और मेरे दिल में उन फैमिलीज़ के लिए दर्द है कि जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है। बेगुनाह मासूम बच्चों का ये जो मर्डर हो रहा है या फिर फ़िलिस्तीनियों के ये जो हुकूक मतलब के राइट्स छीने जा रहे हैं, हम इस पर इस तरह से खामोश नहीं बैठ सकते हैं। अब क्योंकि ज़ैन मलिक पूरी दुनिया के अंदर एक हद से ज़्यादा मशहूर चेहरा है और साथ ही साथ इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी बड़ी है, तो इसीलिए जब इन्होंने फ़िलिस्तीन को बिल्कुल खुलकर सपोर्ट किया तो सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। जहां एक तरफ ये यूरोप की एक बड़ी लॉबी के निशाने पर आ गए और लोग इनको सबक सिखाने तक की बातें करने लगे, तो वहीं दूसरी तरफ ये पूरी दुनिया में पाए जाने वाले फ़िलिस्तीनी सपोर्टर्स के चहीते बन गए। फिलहाल इस लिस्ट में अब अगला नाम है एमा वॉटसन का। दोस्तों, आप में से जितने भी लोगों ने हॉलीवुड की मशहूर सीरीज हैरी पॉटर देखी है वो इनको ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि हैरी पॉटर के अंदर जो 3 बच्चों के मेन कैरेक्टर दिखाए गए थे, मतलब कि 2 लड़कों का और एक लड़की का, तो वो जो लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि यही एमा वॉटसन थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक लंबे वक्त तक दुनिया की सबसे महंगी एक्ट्रेस में से एक रह चुकी हैं। इसके अलावा सन 2015 में टाइम मैगजीन की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई थी उसके मुताबिक इनका नाम दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में भी था, मतलब दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा असरदार लोगों की लिस्ट में। ये एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, मतलब दुनिया में जहाँ कहीं भी कुछ भी चल रहा होता है उन मुद्दों पर अपनी राय देती हैं और उन मुद्दों को लेकर दुनिया को जागरूक करती हैं। यही वजह है कि ये न सिर्फ यूएन के अंदर स्पीच दे चुकी हैं बल्कि यूएन इनको पद से भी सम्मानित कर चुका है। सन 2021 में उस वक्त पूरे यूरोप और अमेरिका में अचानक से हंगामा मच गया था कि जब इन्हीं एमा वॉटसन ने फिलिस्तीन को खुलकर सपोर्ट किया था और सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन की सपोर्ट में एक पोस्ट अपलोड कर दी थी। इस फोटो में लोगों की उस रैली को देखा जा सकता था कि जो फिलिस्तीनियों की सपोर्ट में की जा रही थी और साथ ही कैप्शन लिखा हुआ था सोलिडेरिटी इज अ वर्ब। बस इस पोस्ट के बाद एक बड़े ग्रुप ने सोशल मीडिया पर तो उनको आड़े हाथों लिया ही, बल्कि अब क्योंकि वो यूएन से भी जुड़ी हुई थी इसीलिए इजरायली ऑफिशियल्स ने भी उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। इजराइल के यूएन में जो फॉर्मर एम्बेसडर थे उन्होंने तो एमा वॉटसन को यहूदी विरोधी तक कह डाला था, मगर फिर बाद में जब हालात और ज्यादा बिगड़ने लगे तो हॉलीवुड के ही लगभग 40 से 50 लोग, जिनमें कई मशहूर चेहरे भी शामिल थे, वो एमा वॉटसन की सपोर्ट में आ गए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो के बारे में। रोनाल्डो और फिलिस्तीन की सपोर्ट का जो मैटर है वो वैसे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि रोनाल्डो से रिलेटेड सोशल मीडिया पर जितने भी फोटोज़ और वीडियोज़ वायरल होते हैं कि जिसमें दिखाया जाता है कि कभी वो फिलिस्तीनी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो कभी वो कोई ऐसा बैनर पकड़े हुए हैं कि जिसमें फिलिस्तीन की सपोर्ट वाला कोई कैप्शन लिखा है, या फिर कभी इस तरह की खबरें भी आती हैं कि जिसमें बताया जाता है कि रोनाल्डो ने अपनी फलां चीज़ डोनेट कर दी फिलिस्तीनियों के लिए, तो कभी बताया जाता है कि इतने पैसे दे दिए। तो ये सारी की सारी ही चीज़ें फेक होती हैं। उन फोटोज़ को एडिट किया गया होता है, वीडियोस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया गया होता है और ठीक इसी तरह से वो खबरें भी फर्जी होती हैं। मगर हाँ, सन 2022 के आखिर में उस वक्त अचानक से पूरी दुनिया में तहलका मच गया था कि जब टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की तरफ से रोनाल्डो और फिलिस्तीन को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया गया था। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो आखिरी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतर के अंदर, वो रोनाल्डो के लिए कुछ खास ना रहा, बल्कि वो तो रोनाल्डो को काफी दर्द देने वाला था। वजह ये थी कि रोनाल्डो जहां एक तरफ दुनिया के सबसे मशहूर और बड़े फुटबॉल प्लेयर माने जाते हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है, तो साथ ही साथ उनके फ़ैन को ये भी महसूस हो गया था कि शायद उनका ये फीफा लास्ट फीफा होगा। तो इसी वजह से पूरी दुनिया मैदान में उनके जौहर देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। दूसरी तरफ रोनाल्डो भी शिद्दत से यही चाह रहे थे कि किसी तरह से वो अपने इस आखिरी वर्ल्ड कप में वो कर डालें कि जो पहले कभी नहीं कर सके हैं, यानी अपनी टीम पुर्तगाल को वर्ल्ड कप जितवा
उड़वा दें। मगर हुआ वो कि जिसने न सिर्फ रोनाल्डो को हैरान किया बल्कि उनके फैंस को भी काफी निराश किया। दरअसल जो टीम मैनेजमेंट था उसने रोनाल्डो जैसे एक बड़े खिलाड़ी को फील्ड पर उतरने का ज्यादा मौका ही नहीं दिया, उनको ज्यादातर बेंच पर बैठा कर रखा। नतीजा ये हुआ कि ये खिलाड़ी चाहते हुए भी कुछ ना कर सका और इनकी टीम पुर्तगाल मोरक्को से हार कर फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। यही वजह थी कि पूरी दुनिया ने देखा कि रोनाल्डो इस मैच के बाद अपने आंसू नहीं रोक सके थे और मैदान से रोते हुए ही पवेलियन की तरफ वापस आए थे। इसी मैच के बाद टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की तरफ से एक बयान में ये दावा किया गया था कि रोनाल्डो के साथ इस फीफा वर्ल्ड कप में जो कुछ भी हुआ वो दरअसल जानबूझकर किया गया था। वजह ये थी कि क्योंकि रोनाल्डो एक ऐसा इंसान है जो हमेशा फिलिस्तीनी लोगों के लिए खड़ा होता है, पैलेस्टीनियन कॉज के लिए खड़ा होता है, इसीलिए टीम मैनेजमेंट ने जानबूझकर राजनीति की वजह से ऐसा किया था ताकि रोनाल्डो के करियर को बर्बाद किया जा सके। हालांकि दोस्तों, रोनाल्डो ने फ्यूचर में रजब तैयब अर्दोगान के इस बयान को न तो कभी रद्द किया और न ही इस बयान पर कभी हामी भरी। हालांकि दोस्तों, रोनाल्डो के साथ फिलिस्तीन से जुड़ी हुई ये जो सारी चीजें वायरल की जाती हैं या फिर जो इस तरह के दावे किए जाते हैं, ये सब कुछ यूं ही नहीं होता है, बल्कि इन सब के पीछे सबसे बड़ी वजह रोनाल्डो का अरब मुस्लिम देशों के साथ रिलेशन है। सोशल मीडिया के थ्रू ये देखा गया है कि रोनाल्डो के दुनिया भर में जो बेस्ट फ्रेंड हैं उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो या तो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फिर अरब मुस्लिम देशों से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा रोनाल्डो को कई बार सोशल मीडिया पर अरब और मुस्लिम कल्चर को एंजॉय करते हुए भी देखा गया है। मतलब कभी ड्रेस पहने हुए तो कभी सलाम करते हुए तो कभी माशाल्लाह या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। और अब तो फिलहाल वो पिछले एक लंबे वक्त से सऊदी अरबिया के अंदर हैं, क्योंकि सऊदी अरबिया के अंदर ही खेल रहे हैं, तो ये सारी ही चीजें एक अलग लेवल पर पहुंच चुकी हैं। फिलहाल बात करें लिस्ट में अगले नाम की तो वो है सोनम कपूर। ये दरअसल इंडिया की एक मशहूर एक्ट्रेस हैं कि जो बॉलीवुड के ही एक पुराने मशहूर एक्टर अनिल कपूर की बेटी भी हैं। इजराइल ने अक्टूबर सन 2023 में जब से ही गाजा के अंदर एक खतरनाक ऑपरेशन शुरू किया है, तब से ही लगातार सोनम कपूर सोशल मीडिया के थ्रू गाजा के मासूम बच्चों और बेगुनाह लोगों के लिए आवाज उठाती हुई नजर आ रही हैं। इरफान पठान की तरह ही सोनम कपूर को भी उनकी इन सारी पोस्ट की वजह से काफी टारगेट किया जा रहा है और काफी ट्रोल किया जा रहा है। मगर जिस तरह से लगातार वो इस मामले पर लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं, उससे लगता नहीं है कि इन सारी चीजों का सोनम कपूर के ऊपर कोई असर पड़ रहा है। इन लोगों के अलावा भी और भी ऐसे बहुत सारे बेशुमार मशहूर चेहरे हैं कि जो इस मामले पर अभी भी लगातार फिलिस्तीन की तरफ से और फिलिस्तीन की सपोर्ट में बोल रहे हैं। मगर जाहिर है सभी को एक वीडियो में इंक्लूड करना मुमकिन नहीं है। जैसा कि रिहाना, मियां खलीफा, स्वरा भास्कर या फिर स्पोर्ट दुनिया से भी बात कर ली जाए तो मोहम्मद सलाह और अपने मशहूर फाइटर खबीब या फिर पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान वगैरह। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।